नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? दोनों नेशन नाव पर। नेशन नाव हमेशा हमेशा आपके साथ, हमेशा ही आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Habari yako jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel, please do so. When you click to that icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. So Pradeep ji, yesterday was Christmas. Wonderful to see Prime Minister Modi. Bilkul sir. At that lovely church. I used to pass it every day near Golda Khana. It was Yes, very truly lovely. The Church of the Holy Redemption, absolutely wonderful church right next to the convent of Jesus and Mary School, and on the other side, of course, is the St. Columba's High School. It is a really beautiful church. Wow, lovely. It was really lovely to see Mr. Modi over there. And then, of course, we saw those scenes from Madhya Pradesh and from Jharkhand, VHP members trying to disrupt Christmas. What is the matter with you guys? Anyway, I don't know. I mean, this is absolutely crazy. Why would you want to disrupt somebody else's festival? मतलब कोई आपके खिलाफ अगर कुछ बोल रहा हो, प्रदीप जी फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी फेस्टिवल में किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई बोल रहा हो, आपके पास पूरा हक है उसको जाकर के डिस्टर्ब करें। लेकिन क्रिसमस को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या रहे हैं? इन एनी इवेंट, आई थिंक वी गॉट a couple of very very important guests indeed with us. Can we go across to them after a long time? I think we've got Mr. Avadut Wagh with us. Avadut Wagh साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, how are you sir? Absolutely fine. Jai Siya Ram, how are you? And after a very very long time, I'm seeing Manoj Yadav Sahab all the way from UP with us. Yadav Sahab नमस्कार। मनोज जी तो बॉयकॉट किए थे हमको। मनोज यादव साहब ने बॉयकॉट कर दिया। नमस्कार। नहीं, बाइकआउट वाला शब्द मत कहिए। बाइकआउट तो बीजेपी ने किया मुझे। आपको कर दिया? किसी को बाइकआउट नहीं करता। सर आप तो समाजवादी पार्टी में, आपको ऐसे बॉयकॉट कर सकते हैं? मतलब क्या बात कर रहे हो? समाजवादी पार्टी के बिना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं चलता, और भारतीय जनता पार्टी के बिना आपका काम नहीं चलता। राजीव जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओवरऑल इंडिया बीजेपी ने मुझे बाइकआउट कर रखा। ओवरऑल इंडिया। सर आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं। आज की डेट में इंडिया गठबंधन का मैं इकलौता प्रवक्ता हूं जो बीजेपी जिसके सामने अपना प्रवक्ता नहीं भेजती। सर ऐसा है, which means everybody is getting ready to welcome you in the BJP. From knowing from पुरानी बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है मनोज यादव जी अब धीरे से बड़े आराम से भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, जोर शोर से। अवधूत वाघ साहब, फर्स्ट यू। अवधूत वाघ साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं। अवधूत वाघ साहब, 2 या 3 चीजें। एक तो भारतीय, मुझे ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है बीएमसी की, जबरदस्त चल रही है सर, फैंटास्टिक। In spite of the fact that the lists are not ready, everything is not ready, the alliance is almost ready with the शिंदे सेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार मुंबई में आज की तारीख में प्रचार में लग गए हैं, काबिल तारीफ है। It is absolutely fantastic, wonderful. Number 2, it was great to see Modi ji at the church, convent of Jesus and Mary Church, otherwise called the Church of the Holy Redemption in Delhi. It's a fantastic church. I've passed it so many times. I've been inside so many times. It was really and truly lovely to see Mr. Modi attend the mass over there and also be part of the entire ceremony. Fantastic. But even as Mr. Modi was there, in Jharkhand and in Madhya Pradesh, there were people allegedly with the VHP and a couple of BJP leaders as well who were seen disrupting Christmas. So what is going on? This has never happened before. Avadut Wagh साहब, क्रिश्चियंस के खिलाफ तो आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है, पहली बार देखने को मिल रहा है सर। ये क्या है? वाघ साहब, we would like your take on this. इतने बड़े देश में एक आध दूसरी घटना ऐसी होती है और आपने लाइमलाइट में लाया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और उसका कोई संबंध नहीं है। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो गुरुद्वारा में जाते हैं। अभी आपने बताया वो चर्च में भी गए हैं। जी बिल्कुल। ख्वाजा गरीब नवाज को उन्होंने चादर भी भेजी है और वो मंदिर में भी जाते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये सभी धर्मों का आदर करते हैं। लेकिन यदि किसी लोगों ने एक किया होगा, उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ गुंड तत्वों के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं तो विश्व हिंदू परिषद की
या बजरंग दल की चादर ओढ़कर यदि कुछ करते होंगे तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ऐसे लोगों को शासन ने कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और शांतता और सद्भाव सभी प्रदीप जी। सभी जो परंपरा है, जो आस्था है, जो आस्थे के प्रतीक है, उनके प्रति कायम रखने के लिए सरकार ने योग्य ऐसी कार्रवाई करनी ही चाहिए। अवधूत वाघ साहब, हिंदुत्व एजेंडा, मोहन भागवत जी ने कहा कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल टू डिक्लेयर इंडिया इनटू हिंदू स्टेट। ही सेड एवरीबॉडी, वी आर ऑल इंक्लूसिव, एवरीबॉडी हु बिलीव्स इन द मदरलैंड इज अ हिंदू। तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल की जरूरत नहीं है ना। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट ऑफ मोहन भागवत जी, आरएसएस प्रमुख? आपको यदि यह स्टेटमेंट सुनकर आश्चर्य लगा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और आरएसएस का एक जुना स्वयंसेवक बोलकर मुझे इसका कोई भी आश्चर्य नहीं लगा है, क्योंकि यही बात बाला साहेब देवरस जी ने कही थी, यही बात राजेंद्र सिंह जी भैयू जी ने कही थी, भैया जी ने कही थी, और यही बात सुदर्शन जी ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने की, हिंदू राष्ट्र है ही। जो संगम रवर है वो संगम रवर ही रहेगा, उसको संगम रवर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जिस प्रकार से हिंदुइज्म को, हिंदुत्व को आप एक सिर्फ पंथ कहते हैं, हम कहते हैं ये राष्ट्रीयत्व की भावना है, ये परंपरा की भावना है, ये संस्कृति की भावना है। इस संस्कृति में, एक परंपरा में सभी लोग आते हैं और अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने पंथ के अनुसार भगवान के पास जाने के लिए उनके पास जो जो मार्ग है वो मार्ग अपनाते हैं। कोई यीशु ख्रिस्त को चाहता है, कोई मोहम्मद पैगंबर को चाहता है, जी। कोई और कोई भी बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, वो सभी एक है। भारत की संस्कृति और परंपरा यही हिंदुत्व है, इसके लिए भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है। You know, Avdut Wagh Sahab, Sam Pitroda said that BJP cannot control Rahul Gandhi when he's abroad in foreign state. Well, Rahul Gandhi represents India. Rahul Gandhi represents India. And if he says that Indian democracy is in danger, संविधान खतरे में है, right wing activism बढ़ गया है, minorities live under fear, he is speaking the truth. That is what Sam Pitroda said. BJP cannot control what Rahul Gandhi has to say. अवधूत वाघ साहब, मुझे लगता है सैम पिट्रोडा इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, और अमेरिकन आदमी ने भारत के बारे में क्या बात करना है उसको मैं कोई भी महत्व नहीं देता। सैम पिट्रोडा हैज नो वोटिंग राइट इन इंडिया, ही हैज गॉट अ अमेरिकन पासपोर्ट, ही सिट्स इन अमेरिका, वर्क फॉर अमेरिका, ही हैज नथिंग टू डू विथ इंडिया। कोई आदमी इंडिया में पैदा होता है लेकिन अपने देश का राष्ट्रीयत्व छोड़कर यदि दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश का राष्ट्रीयत्व लेता है, तो डेफिनेटली वो अपने देश के लिए बात करता है। सैम पिट्रोडा भी अमेरिका के लिए बात करता है। इसके लिए सैम पिट्रोडा क्या बोलता है, सैम पिट्रोडा क्या बोलता है, उसके लिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। We don't have to bother what he is saying. Now, before I go to Manoj Yadav Sahab, the fact remains that as far as Rahul Gandhi ji is concerned, आफ्टर द कुलदीप सिंह सेंगर केस, कुलदीप सिंह सेंगर के केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उसके बाद राहुल गांधी जी की ये स्टेटमेंट आई, डेड इकोनॉमी डेड जस्टिस। वुड यू लाइक टू कमेंट वाघ साहब? नहीं, डेड जस्टिस नहीं है, डेड सोसाइटी ऐसा शब्द प्रयोग मैंने तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा है। मैंने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो है वो सुना नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें डेड जस्टिस नहीं लेकिन डेड सोसाइटी ऐसा उल्लेख किया है, मृत समाज ऐसा उल्लेख आया है। तो मैं क्या मृत समाज बोलकर आगे जाऊं या मृत जस्टिस बोल के आगे जाऊं? No, he said dead justice as far as I know, because Okay. that's Doesn't on the matter. Doesn't matter. पहली बात है that's on the कि वो जो Congress website. सेंगर के बारे में जो दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है उसका हम लोग अस्वीकार करते हैं और उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में हम जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, क्या निकाल दे उसका हमसे कुछ लेन देन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से और और सरकार से कुछ लेन देन नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी एंड whatever is the system, we have to accept and we have to go against that. Rahul Gandhi is time and again talking everything against the system. वो जो सिस्टम है उसके खिलाफ बात करते हैं और बार बार बात करते हैं। मुझे लगता है जब इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, दुनिया के सभी देशों से ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ रहा है,
हमारा एवरी मंथ जो जीएसटी कलेक्शन इज ऑलमोस्ट टचिंग 2 लाख करोड़ एवरी मंथ, और स्टिल राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट डेड इकोनॉमी एंड डेड जस्टिस. I think it is because Rahul Gandhi's party is dead, Rahul Gandhi's think process is dead, उनके विचार मृतप्राय हो गए, उनकी पार्टी मृतप्राय हो गई है, और इसके लिए राहुल गांधी के विचार भी उनके पार्टी जैसे ही मृतप्राय है. जी, in terms of the BMC elections and the other 27, in total there are 28 corporation elections. I think one corporation is not having an election this time. There are 29 actually. So what do you think will happen? Do you think the Parishad results will be replicated here? Parishad में तो भारतीय जनता पार्टी has swept the elections. See, I was live on Pudari when Bihar election were coming out, and I said that it will be a replica of Maharashtra election results, and I said that we will be touching 200 figures, and it happened like that. I was also on Pudari on 8 a.m. in the morning about the Nagar Panchayat and Nagar Parishad result, and I said that 75% seats will be won by us, and exactly same thing happened. Time and again I am telling you, the same thing will happen in all municipal corporations in Maharashtra. 15 तारीख को आप मुझे बुलाइए, 75% से ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे, कॉर्पोरेटर्स हम लोग जीतेंगे. और आपको मुझे बताने के लिए बहुत खुशी है कि मालूम नहीं 25% में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बाद में आपके कांग्रेस कहाँ रहेगी. लेकिन ये सभी को आश्चर्यजनक रिजल्ट कांग्रेस के साथ लगेंगे. कांग्रेस इस सभी को छोड़कर एक अच्छी पार्टी बोलकर उभर आएगी और ये बताएगी कांग्रेस विल कम क्लीन एंड इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज इन अपोजिशन कैंप. क्या बात है सर, वंडरफुल. Silvia, राइट, not सो लेट मी Silvia. गो टू मिस्टर मनोज यादव. मनोज यादव साहब, मोदी जी चर्च में थे कल. लवली चर्च बाय द वे, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट. यू हैव लिव्ड इन दिल्ली आल्सो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. दिल्ली में सेक्रेड हार्ट चर्च जो है, जिसको चर्च ऑफ द होली रिडेम्पशन भी कहते हैं, जबरदस्त. लेकिन उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी का रूल स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पर क्रिसमस की जो फेस्टिविटीज है उसको डिस्टर्ब किया गया. मुंबई में नालासोपारा में चर्च है, वहां पर चर्च के सामने आकर के कुछ लोग बैठ गए. उन्होंने कहा बच्चों को आप हनुमान चालीसा पढ़िए, ये करिए, वो करिए, वो करिए. झारखंड का तो केस ही माशाल्लाह है, जबरदस्त है. लेकिन जैसा अभी अभी अवधूत वाघ साहब ने कहा कि उसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों ब्लेम करते हैं भाई? हमेशा आप बीजेपी को ब्लेम करते हैं. वहां की जहां की जो भी सरकार है या जो भी कानून व्यवस्था है वो अपना काम करेगी. जिसने कुछ ऐसा किया है उसको अंदर डालिए. क्या कहेंगे सर आप, मनोज यादव साहब? देखिए, मैं ब्लेम तो नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं जिम्मेदारी जरूर तय करूंगा. ये ब्लेम शब्द कह देना और सत्ता में डबल इंजन की सरकार कह के जनता से वोट ले लेना, इसके बाद ब्लेम का शब्द इस्तेमाल करना, ये सिर्फ आरएसएस के और बीजेपी के लोग कर सकते हैं. एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक कभी नहीं कर सकता. आपके पास डबल इंजन की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें. वो कौन सा राज्य है? दक्षिण भारत को छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, और कुछ और एक आध राज्य छोड़ दीजिए, कर्नाटक हो गया आपका, तो कौन से राज्य में आपकी सरकार नहीं है? और अगर आपकी सरकार है और इस तरह की चीजें हो रही हैं तो सवाल किससे पूछे? तालिबानों से पूछे कि अमेरिका में ट्रम्प के पास जाएं पूछने कि मिस्टर ट्रम्प, हाउ कैन पॉसिबल कि डबल इंजन की सरकार है और क्रिसमस पे जो गुंडे हैं बीजेपी के वो क्या कर रहे हैं? तो उसकी जिम्मेदारी किसी को तो तय करनी पड़ेगी. ब्लेम तो हम लोग वैसे भी नहीं खेलते हैं. जो मौजूदा परिस्थितियां हैं राजीव जी, वो ये समझ में आती हैं कि जो इस वक्त की बीजेपी की सरकार है वो एलिफेंट के दांत वाली सरकार है. देखा, मोदी जी गए ही थे इसीलिए चर्च, कि वो गए थे कि मैं चर्च जा रहा हूं और तुम्हारा निशाना चर्च ही है. उनके जो गुंडे हैं वो गुंडे जाके चर्च पे अटैक करेंगे, लोगों को गालियां देंगे, लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे, लोगों को अगर वो अपना फेस्ट मना रहे हैं तो उस फेस्टिवल को चकनाचूर कर देंगे, बीच में जाके गुंडागर्दी करेंगे. यही तो है डबल इंजन सरकार. ये अभी कोई बता रहे थे, बीजेपी के समर्थक साथी कह रहे थे कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, अमेरिका टेटुआ पकड़ के दबा रहा है. और अभी समझ में नहीं आया है क्या कितना लगा दिया है आपके ऊपर टैरिफ, और आपकी इकोनॉमी मार इतना ग्रोथ किए जा रही. अडानी वाली इकोनॉमी बीजेपी की इकोनॉमी हो सकती है, आरएसएस की इकोनॉमी हो सकती है, देश की इकोनॉमी नहीं हो सकती वो अडानी वाली.
ये शायद पता नहीं कैसे ये लोग पढ़े लिखे हैं, कहां से ज्ञान लिया है, अंग्रेजी तो अच्छी जानते हैं लेकिन बोलना नहीं अच्छा जानते हैं। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों ने भारत की पहचान एक ऐसे सांप्रदायिक स्टेट के रूप में कर दी है कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनों का ये सबसे बड़ा त्योहार है और क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी दुनिया में है। और आज कल जो भारत में हुआ है वो भारत की पहचान नहीं है, इस बात को राजीव जी ध्यान रखिएगा। पूरी दुनिया में और खासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी में ये मैसेज है कि भारत बहुत सहिष्णु देश है, वहां पे सभी धर्मों के लोगों का पूरी तरीके से सम्मान है, उनको पूरी प्रैक्टिस है। और अभी तक तो मुसलमानों के साथ था, अब क्रिश्चियन के साथ है, कल बौद्धों के साथ। अरे बौद्धों को तो इनके पुरखों ने पहले ही मार के भगा दिया देश से। पूरी दुनिया में जो लाइट ऑफ एशिया के नाम से भारत जाना जाता था वो लाइट ऑफ एशिया भारत से खत्म हो गया और दूसरे राज्यों में बचा है। तो ये जो मनु को मानने वाले लोग हैं, जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, मनोज यादव जी, मगर भारत की अस्मिता को डुबो रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा वी आर ऑल इंक्लूसिव, मुसलमान भी हमारे हैं, बाकी अन्य रिलीजन भी हमारे हैं, जो भी इस मातृभूमि को मानता है वो सब हमारे हैं और सब हिंदू है, और सब हिंदू है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूं, हिंदू सिर्फ बीजेपी का जो कैडर 2-3 लोग हैं वो है। कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई गरीब है, कोई किसान है। और मोहन भागवत क्या कोई भगवान थोड़ी नहीं है, ना भारत का संविधान है। मोहन भागवत एक ऐसे बिना रजिस्टर्ड संगठन के इस वक्त वो मुखिया बने बैठे हैं और हमारी सबकी गाड़ी कमाई का पैसा उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेके और पता नहीं कहां कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस देश का पैसा लूट के आरएसएस की तिजोरियों में और मठों में भरा जा रहा है। यही इस देश की सत्यता है। इस देश को बर्बाद करके अब दुनिया में ये नहीं समझते हैं कि कल को अगर कोई भारतीय जो अमेरिका, कनाडा, लंदन में होगा और वो कल अगर वो दिवाली मनाएगा वहां पर जिनकी संख्या बड़ी तादाद में है, तो वही अंग्रेज आके उनको जब वहां पे जूतों से मारेगा तो इनको ये तब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो तब ट्रंप का नारा लगाएंगे, ट्रंप की जय जयकार करेंगे, ट्रंप का पूजा पाठ करेंगे, ट्रंप को चुनाव जिताएंगे और इसके बाद ट्रंप ही भारतीयों को बेड़ियां डाल के भारत में छोड़ जाएगा, सम्मान भी नहीं पाएगा। तो ये वो लोग हैं जो खुद भी खतरे में रखते हैं और भारतीयों को भी खुद खतरे में। लेकिन मनोज यादव जी, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा कि वो अनरजिस्टर्ड संस्था है, लेकिन आप खुद सरकार में थे, केंद्र सरकार में थे, मुलायम सिंह यादव जी डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, आप सरकार में थे, जनता पार्टी भी थी, उसके बाद भी कांग्रेस न जाने कितनी बार आई है, 59 साल के 60 साल कांग्रेस भी रही है सरकार में, आपने फिर आरएसएस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी सवाल के साथ बात कही और इसका जवाब विस्तार से दिया जा सकता है। ये जो आरएसएस और बीजेपी आज जिंदा है, यहाँ पे पता नहीं कौन कांग्रेस का साथी है, मुझे नहीं मालूम है, डॉक्टर ढोने, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको फ्रॉम अकोला जी, बोलिए। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं, आज आरएसएस अगर जिंदा है तो सिर्फ कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, बैन किया, बैन खोला और इस अनरजिस्टर्ड संगठन को सदैव ही सपोर्ट किया। अगर इसको उठा के जेल में ठूस देते और इनके संगठन के पैसे की जांच करा देते तो यह संगठन अपने आप खत्म हो जाता। मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि कोई राजनीतिक दल भी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकता है, उसको एक एक आना पाई का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा संगठन मुझे रोकना पड़ेगा, कांग्रेस के दम पे जिंदा नहीं है। एक और पहले तो मुझे बताइए कि इनकी पहचान मुझे कराइए, इनकी पहचान मनोज यादव जी हैं, चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी। कौन है उनका पोजीशन क्या है, जरा बताइए ना। चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द समाजवादी पार्टी और अनऑथराइज्ड व्यक्ति के आपकी समाजवादी पार्टी, देखिए आप समाजवादी पार्टी के बारे में बात कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कीजिए। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात करेंगे। आपके मुलायम सिंह यादव ने शरयू नदी लाल कर दी। मुलायम सिंह यादव जी के हमने उधर राम मंदिर बनाया है, आपकी औकात हमने दिखा दी है। आपने बहुत बात किया, भगवान ने मोह दिया है, इसके लिए ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए।
अपनी सैलरी सारा से ज्यादा ज्ञान खत्म खर्चा, हो गया। ऊंचाई से कांग्रेस ज्यादा की बात कृपा पे ज्यादा चलने नहीं वाले होनी चाहिए। संगठन, आपको अगर आपको कांग्रेस मैंने ने बहुत तुम पे सुन कृपा लिया, न की होती ना, आपको बहुत तो सुन लिया। तुम्हारी 3 हैसियत नहीं दफे थी कि तुम कांग्रेस जिंदा ने होते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तुम्हारा ऊपर काम खत्म हो 3 जाता। दफे बंदी लाई ये है। तो कहो आपने कांग्रेस हमारा कुछ की भी नहीं बदौलत पे बिगाड़ जिंदा सका। हो गए। ध्यान में रखिए, कांग्रेस आप के क्या, कांग्रेस आपकी को 10 धन्यवाद दो पश्तून आएंगे तो जो भी आज कुछ नहीं कर आरएसएस सकती जिंदा है। है। आपकी हाँ, औकात और क्या है? हैसियत वैसियत आप की बात कौन मत है? करना। आपकी हम औकात आरएसएस क्या की है? हैसियत पे बात आपकी नहीं करते ऊंचाई हैं। क्या है? आपकी सैलरी क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बात कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तो राष्ट्रीय आपके स्वयंसेवक खिलाफ संघ के बात बारे करने में, के लिए क्या क्योंकि हम वो आपको तालिबानियों को जवाब नहीं बुलाएं देता, क्या? इसके लिए बात कर रहे हो। और कौन आपको सवाल जवाब पूछेगा देने के लिए आरएसएस इधर से? नहीं, इसके लिए बात कर रहे हो। नहीं, आरएसएस से राष्ट्रीय कौन सवाल स्वयंसेवक पूछेगा? संघ एक अरे नॉट अ अल्लाह पॉलिटिकल अल्लाह, पार्टी, अरे रुक और आप जाओ जैसे सफेद आदमी बाल ने वाले बात करते दादाजी। समय, कौन बात करते समय पूछेगा? मुंह को लगाम देना कौन चाहिए। पूछेगा और आरएसएस से पॉलिटिकल सवाल? पार्टी के आदमी हो, पॉलिटिकल बाबा पार्टी साहब जैसी बात भीमराव करो। अंबेडकर डोंट जी ने टॉक हमको नॉनसेंस, आई ये एम नॉट हियर टू लिसन ताकत टू दी यू। है कि आरएसएस हो या कोई फालतू संगठन बात उससे मत सवाल करो, पूछा आपकी जाएगा। औकात देखकर बात करो। आपकी औकात जितनी औकात है मत उतना ही बताइए, बात करने मुर्गे का, की तरह टांग जैसे नहीं जितनी ऊपर आपकी की जाती औकात है, वैसे ही लटका आपकी दिए जितनी जाएंगे। औकात है उतना ही बात हाँ, करो। आपके औकात से औकात और बताना सैलरी है। से ज्यादा चलो बात मत करो। ए राजीव जी, इनको हटाइए बिल्कुल सवाल नहीं से मेरे। करेगा आपने। ये अंग्रेजों के मैं चाटुकारिता से मैं सिर्फ नहीं एक बात छोटी करता। सी चीज पूछना अरे चाहता हूँ। अंग्रेजों के, अरे मुन्ने के मनोज यादव जी, चाटुकार, एक सेकंड, अरे एक मुन्ने सेकंड। के मैं चाटुकार, आदमी से बात नहीं अरे करता। पाकिस्तान के चाटुकार, अरे तू तो अरे पाकिस्तान जाओ, का जाओ, चाटुकार अपने है। चाटुकार, जाओ, और जाओ, तुमने जाओ। लाल टोपी जाओ, डाली है, अंग्रेजों की वो कार्ल चाटुकारिता मार्क्स करो, की जाओ, डाली है, जाओ, जाओ। लेनिन की डाली है, लॉर्ड जिनको सर, हमने कार्ल हमारी मार्क्स बातों को के चेलों, ठोक ठोक के, सर, गैरीबॉल्डी की टोपी है। तुम्हारी ये लाल टोपी हमने लॉर्ड खत्म कर विलियम्स दी के, है, हमने नक्सलवाद खत्म महारानी कर दी है, विक्टोरिया के हमने माओवाद दासों खत्म जाओ। कर दी है, सर, ये हमने लाल लाल टोपी डेंगा खत्म कर दी मार्क्सवाद है। की नहीं है। आपकी ये लाल टोपी भी आपको छुपानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अरे यहाँ भाग से साहब, यहाँ से अवधूत आप- भाग साहब और मनोज यादव इन साहब, जाओ, एक सेकंड सर। के चाटुकारो जाओ। मनोज यादव जी, उनकी एक सेकंड। चाटुकारिता अरे में छोड़ो। गीत गाओ। अरे छोड़ो, भाग साहब, हमें छोड़ो पकड़ो चल मत अभी मैं बताना। चलता हूँ। भाग दूसरा साहब, टाइम पे लेकिन जाना भाग है। साहब, टाइम हो दो जाने के पहले, तो सर, जाने के पहले आई वुड लाइक टू I से am here only up to समथिंग। that सर, time. इवन आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द आरएसएस, आई वर्क फॉर द आरएसएस। ये कहना कि तुम्हारी औकात क्या है, मुझे नहीं लगता। मैं ये बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने आरएसएस के खिलाफ, मोहन भागवत जी के खिलाफ जो बात किया है, दैट इज नॉट पॉलिटिकली नॉट अ मैंने फैसिस्ट कोई कंट्री। संवैधानिक बात नहीं कही, जो बात कही संविधान इट इज में नॉट मैंने अ डिक्टेटरशिप। जो मैंने मुझे मेरा औकात निकाला, संविधान संवैधानिक पूछने की कहा है, इजाजत देता है। डिक्टेटरशिप नहीं है। संवैधानिक कहा है। वाक साहब, डिक्टेटरशिप नहीं है। यहां पर हर एक को आजादी है अपनी बात कहने की, जैसे आप आजादी है तो मुझे भी नहीं, आजादी है, मेरी बात रखने का, मेरा सर, गुस्सा सर, निकालने का, मुझे भी आजादी है। ठीक नहीं, है। 2 मिनट के लिए सर, पॉलिटिकल डिस्कशन है, पॉलिटिकल अरे वाक साहब जरा मेरी बात सुनिए। वाक साहब रुक जाइए, वाक साहब, यादव साहब रुक जाइए, आप भी रुक जाइए, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। वाक साहब जरा 2 मिनट सुन लीजिए। यादव साहब आप जरा 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। वाक साहब देखिए, ऐसा है कि Thank you, sir. आपका All आरएसएस the के best. प्रति जय सिया राम। प्रेम हम समझ सकते हैं। सुनिए, वो गए आपका सर, भाग गया। मनोज यादव जी चले को मौका वाक दीजिए। साहब है ना, गए गए चले गए, गए। चले गए सर, चले सीधी गए, बात हाँ। है सर, सीधी बात है। नहीं सर मैं डॉक्टर होने, बोलिए, एक आप सेकंड, बोलिए। एक सेकंड, वाक सर। साहब चलेंगे, आप बोलिए आप। सर डॉक्टर ढोने, मनोज यादव जी और डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा फ्रॉम दी एनसीपी शरद पवार। सर, आई हैव वर्कड एज आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स विद नानाजी देशमुख। 4-4.5 साल मैंने उनके साथ काम किया है। लेकिन इस शब्दावली का प्रयोग करना कि तुम्हारी औकात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दिस इज नॉनसेंस। एक बार अगर कोई यहां इस शो में आ जाता है, उसको पूरी आजादी है, जो बोलना हो बोले। वाक साहब अगर बोल सकते हैं तुम्हारी औकात नहीं है, तो मनोज यादव जी भी बोल सकते हैं कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इनकम टैक्स पे करते हो, पब्लिक में तुम्हारे अकाउंट्स क्या हैं, तुम्हारे अकाउंट्स की पब्लिक ऑडिट हुई है या नहीं हुई है। बाकी हर जगह पे तो आप ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसएफआईओ, ईओडब्ल्यू, पता नहीं क्या क्या भेज देते हैं। इनके यहां पे आज तक कभी भेजा है? मनोज यादव जी आप बताएं। देखिए, मैंने तो नहीं सुना आज तक, मैंने आज तक नहीं एक सुना। बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात राजीव जी कह रहे हैं। बोलिए सर, आपसे। बोलिए, ये बोलिए। मुझे बताइए कि क्या मतलब मोहन भागवत को जो भारतीय संविधान के दायरे में सुरक्षा प्रदान की गई, उस पर टैक्स का पैसा नहीं जाता है क्या? जाता है। गरीब आदमी के, आम आदमी के, हमारे यहाँ के पैसे जाते हैं। तो जो आदमी सरकार और आम जनता के टैक्सेस के चीजों का लाभ ले रहा है, उससे सवाल कैसे नहीं पूछेंगे? और आपका अगर संगठन अनरजिस्टर्ड है तो है, और उसके बारे में आप बताइए, साक्ष्य दिखाइए कि नहीं हमारा रजिस्टर्ड है। और आरएसएस को जो कहने का औचित्य, आरएसएस इज
देश की सारी सांस्कृतिक विरासत की बात करता है, भौगोलिक विरासत की बात करता है, और भी तमाम धार्मिक विरासत की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, तो इस देश की जो समस्या है उसकी बात क्यों नहीं करता है? भाई मेरा तो सवाल सदैव से रहा है आरएसएस से, क्यों नहीं आप बात करते हैं? जो इस देश की समस्या है, बेरोजगारी पे आप नहीं बोलते हैं, बाकी आप भगवान की चिंता आपको रहती है, लेकिन हमारे घर का बच्चा बेरोजगार है, बीटेक करके वो 5,000 की नौकरी नहीं पा रहा है, उस पे आरएसएस का मनोज जी, योगी जी बोल रहे, योगी जी कह रहे कि कोडिन ड्रग स्कैम में हमने 33 डिस्ट्रिक्ट में 75 लोगों को अरेस्ट किया, योगी जी कह रहे। मगर दो बबुआ है, दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठे हैं, एक यहां पर बैठे हैं, डिस्कशन में कहीं नजर नहीं आते, देश में जाते, कोई लंदन जा रहा है, कोई तो किस प्रकार से लोग काम करें? योगी, गवर्नमेंट इज वर्किंग, मनोज यादव जी, बट यू आर नॉट हैविंग, आप फिर अक्यूज करते हो योगी जी को। देखिए, आपने जो सवाल पूछा बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है और साथ में देश के प्रधान, उन्होंने दो नमूने कहा है, खुद दिल्ली वाला नमूना कहा है तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को कहा, चूंकि उनकी अदावत है, और खुद के बारे में कहा होगा तो शीशा देख लिया होगा सुबह उठ के उन्होंने कायदे से, तो अपना चेहरा नजर आ गया होगा, तो उनको लग रहा होगा कि आई एम लुकिंग लाइक ए डैश डैश डैश। मैं कुछ शब्द नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारे नेता बहुत ही स्मार्ट है, खूबसूरत है, लाजवाब है, और जब देखो तो मंत्रमुग्ध हो जाओ। मैं देखो, अब मैं चाहूंगा कि आप उनकी फोटो चलाइए, देखिए स्क्रीन पे चल रही है, और योगी जी के चला के देख लो, उनको कौन पसंद करता है? वो लगते ही वैसे हैं जैसा वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि सीरप वालों पे मुकदमा ना करो, यू आर द पार्टी विद डिफरेंट, ऑलवेज यू आस्क इट। तो आप बुलडोजर चलाओ, आपकी आइडेंटिफाई, आपका कार्यशैली, आपकी पद्धति बुलडोजर वाली है। इनके यहां बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हो? कौन मना कर रहा है? हम मांग कर रहे हैं, अब बुलडोजर गायब हो गया, बुलडोजर का चक्का जाम हो गया, उसका डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। क्यों? कि दे आर सजातीय, दे आर इक्वल कास्ट पीपुल। तो फिर बुलडोजर नहीं चलेगा, तब क्या चलेगा? मुकदमा चलेगा, न्यायपालिका चलेगी। फिर वहां फूफा बैठा होगा उनका, अपराधियों का कोई फूफा, नाना, मौसा, चाचा बैठा होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो उनको जमानत दे देगा। ठीक वैसे जैसे कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट को, एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाप को हत्या करने वाले को उसकी सजा ही सस्पेंड कर दी जाएगी। हत्या तो उसका कोई मौसा, कोई फूफा, कोई ताऊ, कोई बैठा होगा। तो ये इसीलिए अब न्यायपालिका खेलेंगे। डिमांडेड कि बुलडोजर चलना चाहिए, अगर बुलडोजर नहीं चला तो हम मांग करते रहेंगे। मनोज यादव जी, मैं आपसे एक और वही सवाल पूछना चाहता हूं। बीच में क्या हुआ, आरएसएस की बात हो गई, वाघ साहब जो है बहुत बिगड़ गए। वो उनका वैसे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हमेशा ही बिगड़ते हैं ऐसे, और मुझे उम्मीद भी थी कि वो ऐसे ही बिगड़ेंगे। वो क्या है कि जब वो बिगड़ते हैं तो शो में कलर आ जाता है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। लोगों को क्यों लड़ाई झगड़ा तू मैं पसंद है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पसंद है तो है, क्या करें सर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, वेरी फ्रैंकली, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। हिंदुस्तान की इमेज ये कभी नहीं थी, आज तक हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, सब कुछ होते थे, वगैरह वगैरह। सर ये सब लोग ईसाई स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते हैं, ये सब लोग, इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, फिर क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं। आप देखिए ना, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या विश्व हिंदू परिषद के हों, मैं तो सबको जानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। इन सबके बच्चे जो हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, कोई जर्मनी में पढ़ रहा है, कोई फ्रांस में पढ़ रहा है, कोई यूएसए में पढ़ रहा है। क्यों जाते हैं सर? अगर यहां पर आपको क्रिसमस से आपको तकलीफ है, और तो और छोड़िए, इट हैपेंड इन मुंबई। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा एंड डॉक्टर ढोने। सर मुंबई में नाला सोपारा में चर्च के सामने आप आ गए हैं, यूं ऐसे करके बच्चों को बिठा लिया और हर एक से आपने हनुमान चालीसा का पाठ कराया क्रिसमस वाले दिन। मतलब मनोज यादव जी, मेरी समझ के बाहर है, ये क्या हो रहा है सर? आप बताइए मनोज यादव जी, दिस इज नॉट डन, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर, प्लीज बताएं। देखिए, मैं ये बात अपनी जरूर कहूंगा कि बीजेपी ने इस देश को सिर्फ और सिर्फ बदनाम किया, लूटा। ये बात कहने में मुझे कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बिल्कुल कदाचित नहीं डरूंगा। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत की छवि बर्बाद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये बात उससे जाके पूछो ना, जो इन वीडियोस को, इन घटनाओं को, इन घटनाक्रमों को देखता है, सुनता है, जाता है।
आप अभी इससे पहले की घटना उठा के देखो, एक मुस्लिम पे बीजेपी की एक प्रवक्ता ने कितना घटिया बयान दिया था मुस्लिम मोहम्मद साहब पे, और इसके बाद पूरी मुस्लिम कंट्रीज में भारतीयों के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ था, कितनों को नौकरियां छोड़नी पड़ गई थी, कितनियों को देश, वो दुबई हो चाहे कुवैत हो, तमाम देशों से उनको ये ऑर्डर मिल गया था कि आप हमारा देश खाली कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उस बीजेपी की प्रवक्ता का समर्थन करते नजर आ रहे थे वो लोग। तो जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस इस देश की छवि को पूरी दुनिया में बर्बाद करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में और यहां पे कुछ लोगों को बरगलाने के लिए। लेकिन अगर ये इतनी घटिया और सस्ती राजनीति करके आप भारत का नाम मिट्टी में, वैसे तो पहले भी आप मिट्टी में मिलाए, आप ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, आप ही थे जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाए रखने में उनका साथ दिया, आप ही थे जो आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, आप ही थे जो इस देश को बांटना चाहते थे, आप ही थे जो इस देश में मजहबी दंगा और फसाद कराना चाहते थे। तो ये अब सत्ता में बैठ के नंगा नाच कर रहे हैं। मुझे कहते हुए कोई भी संकोच नहीं, जिस दिन बीजेपी आरएसएस के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी सत्ता के बाद, उस दिन इस देश को बेहतर विश्व स्तर पे एक नई पहचान मिलेगी और ये बात पता चलेगी कि भारत में ऐसे संगठन हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जो किसी भी संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं करते और जो भारत विश्व बंधुत्व के लिए और अनेकताओं में एकता के लिए जाना जाता था और विश्व बंधुत्व का नारा देता था, वो मेरे ख्याल से आरएसएस के कैडर वोट के बराबर रह गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी, Right, so let me go across to डॉक्टर ढोने। डॉक्टर ढोने, अभी आपके आने के बिल्कुल पहले ही मनोज यादव जी, जो चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक बात बड़ी, मैंने उनसे सवाल पूछा था, आप कह रहे हैं आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, उसका पब्लिक ऑडिट नहीं होता। ये तो खैर मैं नहीं बोला, अगर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो ऑडिट कैसे होगा, सीधी बात है। बट स्टिल दे आर पेइंग टैक्स, दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। और जैसे मोहन भागवत जी 3 बार कह चुके हैं कि भाई हमारे ऊपर बैन 3 बार लगा और 3 बार बैन उठा, तो इसका मतलब आरएसएस इज अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। किसी के ऊपर बैन लगाने के पहले, पाबंदी लगाने के पहले उस संस्था का कोई तो वर्चस्व होना चाहिए। तो वर्चस्व था, आपने हमें सस्पेंड कर दिया, उसके बाद वही बैन आपने फिर उठा दिया 3 बार। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर ढोने, मनोज यादव जी का यह मानना है कि अगर आज आरएसएस एग्जिस्टेंस में है तो सबसे बड़ा हाथ उसमें कांग्रेस का है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तरह एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर ढोने बोलिए सर। सर ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो आरएसएस पे पाबंदी लाई थी कांग्रेस ने लाई थी जी, लेकिन कांग्रेस का ऐसा है, अब राहुल गांधी ने खुद ही बोला कि हमारे भी बीच में भी कुछ लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं। तो इसमें गलती तो हुई है कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ऐसी है कि वही किसी पे एकदम ऐसा दुनिया को नहीं दिखने को ना कि भाई ये कुछ इन पे नाइंसाफी कर रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस की सोच रही, सबको चलाओ, विरोधी पार्टी है उनको भी चलाओ। तो ये कांग्रेस की जो भूमिका रही, उसके वजह से उसका इन्होंने गैर फायदा जो है आरएसएस वालों ने उठाया है। जैसे आप बार बार कहते हैं मोदी जी ने भी उठाया। हाँ, मोदी जी ने भी उठाया। हम तो बोलते हैं कि अहमद पटेल अगर उनको नहीं बचाते थे तो अमित शाह और मोदी तो जेल में रहते थे। तो कहने का मतलब ये तो हमारे नेता ने, राहुल गांधी ने बोला है कि कुछ लोग तो थे जो इनके बारे में सहानुभूति रखते थे, लेकिन अभी राहुल गांधी का जमाना आ गया सर, अभी राहुल गांधी की इसमें नहीं चलेगा ये सर। इसके पहले अभी एक छोटी सी फुटेज चल रही थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, राहुल गांधी जी गुरुद्वारे में, देखो वो सब लोगों के जूते संभाल रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं। आई लव दिस गाय, लुक एट इट, दिस इज ब्यूटीफुल। और उसके अलावा लंगर खुद बना रहे हैं, लोगों को खाना भी परोस रहे हैं, जबरदस्त, वो सब जबरदस्त चलता है। आप पूरी बात सुन रहे, पूरा सवाल सुन रहे हैं सर। डॉक्टर ढोने साहब, आप तो मेरे परम मित्र अवधूत वाघ साहब, उनकी तरह बेहिम्मत करो ना सर, पूरी बात सुन लो। ये सब बढ़िया होता है सर। जैसी राहुल गांधी जी की छवि जो है ऊपर आने वाली होती है, वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर देते हैं, कह देते हैं कि वो सारा उस पर पानी फिर जाता है। फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी इधर से, स्टालिन साहब उधर से, कोई और उधर से, सब लोगों को मिल करके उसके ऊपर कुछ जरा कुछ फिरना पड़ता है, कवर अप करना पड़ता है, उस पर लीपापोती करनी पड़ती है। अब आप बताएं डॉक्टर ढोने साहब, बोलिए प्लीज बोलिए। सर ऐसा है, राहुल गांधी जी जो है
देखिए, उनके पिताजी की जिन्होंने हत्या की है जी उनको उन्होंने माफ कर दिया, किया। ठीक है। और जो लोगों के साथ में वो खेले बचपन में, उन्होंने उनकी दादी को मार दिया, जी लेकिन देखो उनके दिल में कोई नफरत नहीं है उनके जी हाँ बारे में। बिल्कुल। तो ये है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, देखिए लोगों को लगता है सोनिया गांधी बहुत यानी अच्छे हृदय की जो बोलते हैं वैसी नेता है, और उनके दिल में गरीबों के लिए, जनता के लिए बहुत प्यार है। दुरुस्त बात। उन्होंने बोले हैं, जब ये अन्न सुरक्षा विधेयक आ रहा था तो उनको बोले थे कि आप मत आइए, आपकी तबीयत खराब है, लेकिन बोले नहीं नहीं, ये विधेयक तो मैंने बोला है कि गरीबों को इसका तो खाने गवाह को मैं हूं। मिलना चाहिए, कोई भूखे पेट सोना नहीं चाहिए। करेक्ट। तो उनकी तबीयत खराब रहने के बावजूद वो हाउस में आई थी, एक बात। दुरुस्त बात। और उनके पति को मारने वालों को उन्हें बड़ा दिल करके कि उनके छोटे बच्चे ठीक है उनको माफ कर दिया। तो ये है, इसको बोलते हैं But जो आप हिंदू धर्म में जो misinformation- है दया। दोनों से आप मिस इन्फॉर्मेशन करते हो बीजेपी और आरएसएस के बारे में। मोदी जी खुद एक्समेस क्रिश्चियन मास के लिए दिल्ली में वहां चर्च में गए थे। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि सब लोग इंक्लूसिव है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जो भी भारत देश को मातृभूमि मानता है वो सब हिंदू है। तो जब इतना क्लियर है, मोदी जी जा रहे चर्च में, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं रिलीजन में, व्हाई इज द कांग्रेस स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र भी ये बोलता है कि हिंदू राष्ट्र के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल नहीं चाहिए। मोहन भागवत जी ये भी बोला कि कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र है ही। बोलिए बोलिए दोनों साहब। तो मैंने बोला ना कि ये हिंदू राष्ट्र अगर है तो क्या ये अभी बना, इनके वक्त में बना? इन्होंने डिक्लेयर करना चाहिए हिंदू राष्ट्र है। कांग्रेस के समय से ही हिंदू राष्ट्र है। ये भूमि पूजन शब्द है, शिलान्यास शब्द है, पूजा होती है, नारियल फोड़ते हैं, ये प्रथा तो हिंदू धर्म की है। तो आप बोलिए कि कांग्रेस के जमाने से ही ये हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, इसमें मोदी जी का और भाजपा का कोई योगदान नहीं, ये भी उन्होंने बोलना चाहिए। या फिर ऐसा बोलिए कि 2014 के बाद में हमने स्पेशल ऑर्डिनेंस लाया या कोई कानून किया कि हिंदू राष्ट्र बन गया, ये बोलिए। लेकिन दोनों सर में ये से एक तो बात इन्होंने बताइए बोलनी चाहिए डॉक्टर कि ढोने। हिंदू राष्ट्र पहले से एक बात। हाँ? जी 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 आप खत्म करें, Complete कीजिए। उसके बाद में हाँ, सवाल तो पूछता ये हूं, जो बोलिए। है, हाँ, और ये इनके मोहन भागवत तो बोलते हैं बहुत बढ़िया, और ये मोदी जी भी बोलते हैं बहुत बढ़िया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब बोलते हैं। लेकिन उनके ही जो मंत्री है, उनके सांसद है, वो संसद में किसी को दहशतवादी बोलते हैं। जी बोलते हैं। उनका जो नीतीश राणे है, ये तो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। तो उनके ये अभी उनके कार्यकर्ता मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, क्रिश्चियनों के खिलाफ बोलते हैं। उनको क्यों मंत्री पद पे रखते हैं? उनको क्यों आप मेंबरशिप, उनको जो दूसरे सांसद को आतंकवादी कहते हैं पार्लियामेंट में, उनको आप दोबारा क्यों टिकट देते हैं? ये सब बोलने की बातें है। और मैं आपको बताता हूँ, इनके दिल में ना हिंदुओं के लिए प्रेम है, ना मुसलमानों के लिए प्रेम है, ना किसी के लिए नफरत है। इनकी एक ही है कि हमारी सत्ता है, फिर हिंदू मरे मुसलमान मरे हमको चलता है। जी इन्होंने तो गोधरा में हिंदुओं को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, इनकी सरकार है, ये कौन हम नहीं कर रहे, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग बोल रहे हैं कि मोदी और संत लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की लाशों पे इनकी सरकार आ गई, गुजरात में हिंदुओं की लाशों पे इनकी सरकार आ गई, दिल्ली में। ये तो हिंदुओं के हत्यारे हैं। डॉक्टर ढोने, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। वेयर इज मनोज यादव जी इज लेफ्ट? ओके, डॉक्टर ढोने आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं मल्होत्रा मैडम कुछ बोलना, मैं जा रहा हूं, उन्हीं के पास जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आपसे पूछ रहा हूं। सर क्या है कि अभी क्रिसमस में जिस तरीके से इन्होंने मल्टीनेशनल्स के जो आउटलेट्स है, डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा प्लीज लिसन टू दिस क्वेश्चन, आई विल बी आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू यू आफ्टर दैट। सुनने में ये आया है कि तोड़ फोड़ जो इन्होंने करी, बागी सब जो इन्होंने करी, सुनने में ये आया कि आज से ही हफ्ता शुरू हो गया उसका, कि मतलब जिसको प्रोटेक्शन नहीं बोलते ना, कैसा आपने सुना है क्या ये कुड दिस बी द पर्पस? क्या ये पर्पस है? सांता क्लॉज फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो क्या पर्पस क्या है इसका? मतलब मेरी समझ के बारे, क्योंकि कोई भी हिंदू इसको तो सपोर्ट नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? बोलिए। ये जो तालिबानी लोग है ना, तालिबानी जी, वो मुसलमानों के जो तालिबान है, तो ये हिंदू धर्म में भी अभी ये तालिबान बन गए हैं जी। ये तालिबान, हम तो दोनों का विरोध करते हैं, मुसलमानों के जो तालिबान है वो भी, और ये हिंदुओं के तालिबान, ये एक ही है।
और ये आप देखिए, जितने देश में बलात्कार हो रहे हैं, जितने देश में मर्डर हो रहे हैं, जितने देश में जो नफरत फैलाने वाली बात हो रही है, और खास तौर से बलात्कार के मामले में किस पार्टी के नेता है आप जरा देख लीजिए, तो आपको पता चले। भाई तो ढूंढते रहते हो, कोई कांग्रेस वाला मिलता क्या, कोई समाजवादी पार्टी वाला मिलता क्या, कोई राष्ट्रवादी वाला मिलता है क्या? मुझे तो दिखने को भी नहीं दिखता कि कोई ऐसे केस में कोई ये पार्टी वाला है। Right. हर So, जब आता है, जी। नहीं सुनिए, अगर कोई बलात्कार हो और उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, उसके रिश्तेदार है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के। So let me go to Dr. Surena Malhotra. Dr. Surena Malhotra, what have you heard, ma'am? Why are they doing this right now and on such a large scale? हमने तो सुना है कि पैसे वैसे कम हो गए थे, शायद कलेक्शन जारी है, कुछ ऐसा कुछ है। Is that true? VHP के शायद पैसे सर वैसे कम हो गए ये होंगे। आरएसएस ने भी वैसे किया है, और चंदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, और ईटे, ये जो वीट रहती है वो ईटे बेचने का काम किया, लोगों को पैसे देके ईटे दिए। इनका तो धंधा ही है, ये मोदी जी से लेके आरएसएस से लेके छोटे छोटे So let me go to Dr. Malhotra. ये इनका धंधा है सर ये। Dr. Malhotra, please. That is true. That we have also heard that such thing goes on, and basically it is elections are going to come. So the divide and rule. That is their policy. They want to divide. They want to show the whatever the Hindus. Some Hindus who believe in their Hinduism, that oh they are against the Christians and they अपना धर्म सेव कर रहे हैं, Christianity यहाँ आने नहीं देंगे, ऐसे मतलब false ये करते हैं, and for that वहाँ अपना फोटो आप उन्होंने किया, वहाँ पे जाके दिखाते हैं, उधर विजिट करते हैं, और यहाँ इनके लोग ये सब चीजें करते हैं। सो माइनॉरिटीज को तो उन्होंने मतलब पूरा डरा के रखा हुआ है। सो ये कौन सी नीति है उनकी? तो दिस इज डिवाइड एंड रूल व्हिच दे ऑलवेज डू बिफोर द इलेक्शन मोर। सुरेना मल्होत्रा जी, डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, जिस प्रकार से सुप्रिया सुले जी ने इंडिकेशन दिया that we might have an alliance with Ajit Pawar ji where the Maharashtra civic polls are concerned, ये नाराज होकर आपके प्रवक्ता प्रशांत जगताप ने छोड़ दिया, पार्टी छोड़कर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, बोले हम सेक्युलर विचार के हैं, अजित पवार के साथ जुड़ेंगे तो हम जुड़ नहीं सकते ना। व्हाट्स हैपनिंग? आप वहां जुड़ रहे हो पुणे असेंबली में, यहां पर अपने जयंत राव जी को भेज दिया यूबीटी उद्धव जी के पास। What's happening? What is the inside news, Dr. Malhotra जी? बेसिकली जो मुंबई है, मेजर प्लेसेस है, वहाँ पे तो महाविकास आघाड़ी के साथ तो प्रयत्न करेंगे ही। जहाँ पे मुंबई है, मुंबई में तो सब मतलब ये बहुत ही मतलब पहले से ही डिसाइडेड है कि महाविकास आघाड़ी पूरी साथ में आनी चाहिए और बीजेपी का सामना करना चाहिए। अभी उसके लिए प्रयत्न जारी है। अभी शिवसेना के साथ भी बातचीत चल रही है, कांग्रेस के साथ भी, जैसे सुप्रियाताई ने अश्योर किया कि एंड तक सुप्रियाताई तो ट्राई करेगी महाविकास आघाड़ी साथ में आए। अभी जो बात पुणे की है, जहाँ पुणे पिंपरी चिंचवड़ ये जो जगह है कि यहाँ पे काफी सालों से काम तो दोनों पार्टियों ने मतलब एनसीपी के नाम के अंदर ही दोनों पार्टियों ने मतलब अभी सब लोग ने काम किया हुआ है वहां पे। जैसे अजीत दादा ने काम किया हुआ है, सुप्रियाताई ने काम किया, पवार साहब है, तो वहां पे वो बातचीत जैसे हो रही है कि बाबा लोगों के भले के लिए या सरकार में आके मतलब जहाँ पे सत्ता होए हाथ में, तो जो फंड जो होता है वो सही काम में यूज होता है। दोनों जो भी वहां पे सुप्रियाताई है, अजीत दादा है, पवार साहब है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है लोगों के लिए, तो लोगों के लिए शायद काम कर सके एक्चुअली प्रैक्टिकली, ना कि खाली विरोधी पक्ष में रह के खाली बातचीत के ऊपर या टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता रहे या विरोध होता रहे। उससे अच्छा कि लोगों के लिए कुछ काम है। ये जो इलेक्शन है जो नॉर्मली स्थानिक लोगों के साथ मतलब लोगों के लिए स्थानिक नेताओं के साथ सब डिस्कस करके ये इलेक्शन होता है। यहाँ पे मतलब it is more a localized election where you want to give the best to the people, and this is what I suppose they thought that. And as it is, Ajit Dada, he's gone to the other side, whatever. But in a way, their party is also a secular party. They may not be saying that, but in a way, they are secular. Prashant Jagtap leaves, resigns in disgust. Well, I never expected this. See, that is even Jayant Patil ji today has said, and many people have said that he has done it in a very hurry. He may be very sentimental or something. I think he should, because not yet final decision has not yet been taken.
but whatever, the discussions had to be on, so he shouldn't have sort of gone in such a hurry. This is what everybody feels. Even Jayant Patil has said ki he shouldn't have gone in such a hurry. But anyway, सुप्रिया जी का क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा रोज नई सुबह होती है. Now she has just trashed. I mean, उन्होंने ट्रैश किया. She has said nothing happens. I mean, it is like nothing happened. जगदप गया तो क्या हो गया? नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने तो टाइम दिया. उनके साथ तो कितना, आई थिंक 8 आवर्स का डिस्कशन हुआ था. सो द डिस्कशन तो डेफिनेटली हुआ. अभी क्या बातें हुई वो सब तो हम लोग तो नहीं जानते हैं. बट द थिंग इज द फैक्ट इज, मैम, डॉक्टर मल्होत्रा, सबसे बड़ी बात ये है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एकनाथ शिंदे जी का सवाल है, ये लोग बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं. और एक और चीज आपको बता दूं, हो सकता है मनोज यादव जी को ये बात बहुत अच्छी लगे. मनोज यादव जी, सुनने वाली बात है, मुंबई शहर में समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया काम कर रही है. मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया सीटें आने वाली है बीएमसी में समाजवादी पार्टी की. अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में धीरे धीरे बड़े प्यार से जितनी उनकी जो सीट्स हैं, डॉक्टर ढोने वुड नो, क्योंकि डॉक्टर ढोने पहले समाजवादी पार्टी में हुआ, अभी भी समाजवादी, यहाँ पर 2 मेंबर है समाजवादी पार्टी, 2 स्पोक्सपर्सन. लेकिन समाजवादी पार्टी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब बाय द वे, एंड दे माइट इवन गेट 10 सीट्स. अब जो पहले एक बार उनकी आई थी 12 के 15 सीट आ गई थी समाजवादी पार्टी की एक जमाने में. फिर उसके बाद एज दे से थैंक्स टू द कांग्रेस का धन्यवाद करना पड़ेगा, शुक्रिया अदा करना पड़ेगा. सबको उन्होंने कांग्रेस में ले लिया था, याद है मुझको. सो विच इज वाई अबू आसिम आजमी साहब इज ऑलवेज वेरी सस्पिशियस ऑफ कांग्रेस. उनको कांग्रेस के इरादों पर हमेशा शक रहता है. मनोज यादव साहब, आप बताएं, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बात तो ठीक है, पीडीए बड़ा जबरदस्त चल रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बहुत बढ़िया चल रहा है सर. लेकिन यहां पे कांग्रेस का क्या रवैया कभी मतलब समझ में नहीं आता. या ये भी हो सकता है सर कि कांग्रेस की अब इतनी स्ट्रेंथ है नहीं उत्तर प्रदेश में. एक जमाने में उनका कैडर वगैरह बहुत बढ़िया हुआ करता था यूपी में, अब वो शायद कैडर खत्म हो गया है. क्या ये वजह है या क्या है? कोई एक आर्टिकुलेट फोकस्ड तरीके से, जिस तरीके से आज की तारीख में आप लोग चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी चल रही है, वैसे कांग्रेस दिखता नहीं है कि वैसे चल रही है. मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो सुधार कर दें सर. बोलिए सर. बिल्कुल, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा और इस सवाल पे देश में चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा नहीं होनी चाहिए. मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, राहुल जी पे, प्रियंका जी पे, कांग्रेस नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं है. चाहे खड़गे जी हो, वो लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं. लेकिन अभी मैंने एक आरोप लगाया कि जो आज स्पेस मिल गया, आरएसएस को मिल गया, बीजेपी को मिल गया, उसमें जो कांग्रेस में आरएसएस थी, उस आरएसएस ने आरएसएस को जिंदा रखा. तो उत्तर प्रदेश में कमोबेशी यही हाल है. उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है वो बीजेपी से नहीं लड़ती, समाजवादी पार्टी से लड़ती. कौन वाली कांग्रेस? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी वाली नहीं. जो आरएसएस वाली कांग्रेस है वो सिर्फ बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से लड़ती है. उसका बीजेपी से कोई सरोकार नहीं. वो बीजेपी से किसी भी तरीके का, किसी भी कोई भी सोच का इंडिपेंडेंस नहीं है. वो तो बिल्कुल अपने आप को इक्वल मानते हैं और वो वही काम करते हैं जो काम बीजेपी को फायदा देता है. उसमें बात ये कही जाती है कि अगर समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी तब कांग्रेस जिंदा हो जाएगी उत्तर प्रदेश में. ये मेरे ख्याल से सरासर अनुचित बात है. अगर आप कांग्रेस हैं और कांग्रेस होके बीजेपी से लड़ेंगे तो आप खड़े हो जाएंगे. उसमें किसी समाजवादी पार्टी की कोई, मुझे नहीं लगता ऐसी भूमिका होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश इज नॉट ए स्मॉल स्टेट. बड़ा राज्य है, 403 विधानसभाएं हैं और अभी 80 सीटें लोकसभा की हैं. आपकी हिस्सेदारी उसमें जो बनती है, आपको उस पर काम करना चाहिए था. लेकिन जो आरएसएस वाली कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में या देश में, वो स्पेस देती है बीजेपी को कि वो कैसे आगे बढ़ सकती है. तो इसलिए मैं इतना जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि वो लोग इस तरह की बात कहेंगे, करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का पहला और अंतिम लक्ष्य इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का रहा है, सदैव से रहा. देखिए, हमारा जो पीडीए, आपने जिस पीडीए की बात करी, पीडीए का सिर्फ एक ही आधार है. पीडीए के लोगों को हक और अधिकार अभी पूरा मिला नहीं है. सरकार आजादी के चाहे 70-75 साल हो गए हैं, चाहे लोगों की अर्थव्यवस्था, लोगों के डेमोग्राफिक चेंज, आर्थिक चेंजेस,
सब हो सकते हैं, उनका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन जो पीडीए समाज है, जिसको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा जाता है, उसके पास अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स होने बाकी हैं। उनको एजुकेशन में, उनको शिक्षा के अधिकार के साथ साथ स्वास्थ्य का, उनको नौकरियों में, उनको राजनीति में, उनको अपने बच्चों की सुरक्षा में बहुत काम करना है। इसलिए समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर उत्तर प्रदेश लेकिन यहाँ पर आई हैव अ क्वेश्चन। डॉक्टर होने, आप जरा स्क्रीन की तरफ देखें, वो मुरली देवरा जी बीच में है और वो सफेद बाल वाला आदमी मैं हूं सोनिया गांधी जी के साथ, वो देख लीजिएगा जरा। सोनिया गांधी जी जब पहली बार किसी पब्लिक फंक्शन में आई और उसके बाद इसके बाद उन्होंने मुझको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, विच वाज क्रिएटेड बाय ऑल एजेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वो बिल्कुल खुश नहीं है जिस प्रकार नरसिम्हा राव जी की सरकार राजीव गांधी के असैसिनेशन को लेकर के चल रही है। दैट्स मी बाय द वे, दैट इज मुरली देवरा जी इन द मिडल एंड दैट इज सोनिया गांधी। मैंने कहा आपको दिखा दूं क्योंकि आप सोनिया जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये बताएं मनोज यादव साहब कि ये 25,000 के करीब स्कूल बंद करना चाहते थे आदरणीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिसमें से 5,500 स्कूल के करीब इन्होंने बंद कर दिए हैं। बाकी के ऊपर क्या अभी भी तलवार लटक रही है क्या, या आप लोग सफल हो गए हैं इन स्कूलों को बचाने के लिए? ये बताइए प्लीज प्लीज। निश्चित तौर पे उस पर बड़ी एक रोक हुई है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो पीडीए समाज के गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन को खत्म करके, उस जमीनों पे कब्जेदारी करके, उस एजुकेशन सिस्टम को, हमें अच्छे से याद है कि एक दौर ऐसा था कि प्रौढ़ शिक्षा चलाई जाती थी, आपको याद होगा? याद हाँ, कि प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो लोग वयस्क हो गए, जो प्रौढ़ हो गए और उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है, तो एक दौर ऐसा था, वो रिज्यूम कांग्रेस का था, वो रिज्यूम तमाम सारे घटक दलों के साथ की सरकारों का था कि हम उनको पढ़ाने की बात कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाए जाते थे। आज का भारत, जिसको ये विकलांग भारत बनाना चाहते हैं, दिव्यांग भारत बनाना चाहते हैं, उनके नौनिहालों के स्कूल को बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब के स्कूल, गांव में स्कूल बंद हो जाएगा तो वो अपने बच्चे को मजदूरी कराएगा, वो 4 गांव दूर नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए। तो ये आरएसएस की, बीजेपी की एक कुटिल साजिश है कि पीडीए समाज के लोग अनपढ़ रह जाएं, पीडीए के समाज के बच्चे आगे ना बढ़ पाए। तो उस लड़ाई को उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिस वक्त, मैं ये महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिस वक्त भारत को महाशक्तिशाली बनने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उस वक्त इस आरएसएस और बीजेपी की सत्ता के कारण 6 साल से ज्यादा का समय अटल बिहारी वाजपेयी को और 11 साल का समय ये नरेंद्र मोदी को जो मिला, ये लगभग जो 1.5 दशक से ज्यादा का समय जो बीजेपी के लोगों ने भारत में सत्ता में बैठकर शासन किया, उसकी वजह से हम महाशक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब तो हम ये लड़ रहे हैं कि हमारे गरीब को कैसे रोटी मिलेगी, हमारे गरीब को कैसे शिक्षा मिलेगी, कैसे अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगा, और कैसे भारत के गरीब लोग भी पढ़ लिख के मजबूत बनेंगे। आज अब लड़ाई बोल रहे हैं। एसआईआर इज एनआरसी। अखिलेश यादव जी ने कहा एसआईआर इज एनआरसी। 3 करोड़ पीडीए के लोगों को डिलीट कर दिया है। बट does it stand? Because जो आपके इंडिया अलायंस के साथी है उमर अब्दुल्ला कहते नो, I believe I won. Our government has come through the same EVM. सुप्रिया सुले जी, डॉक्टर मल्होत्रा बैठी, डॉक्टर सुप्रिया सुले जी ने कहा कि I believe in the EVM because 4 बार इस EVM ने मुझे इलेक्ट करके, तो बिखर रहा है। इंडिया अलायंस is breaking down. Nobody is taking your call. SIR, NRC same. मनोज यादव जी, बड़ा मजेदार सवाल पूछ लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे एक चोरी की खबर तो रह जाती, मैं आपको बताता हूं, जो ये 3.25 करोड़ का आंकड़ा आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में, 2,75,78,00,000 के करीब का आंकड़ा। मैं लखनऊ का आंकड़ा आपको बताता हूं। लखनऊ में 12 लाख, 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 विधानसभा सीटों में 12,47,033 वोट कटे हैं। और कटे नहीं है, वो डबलिंग वोट हैं। कटे तो जो मरे हैं वो कटे हैं, जो और किसी कारण से रहे हैं वो कटे, लेकिन डबलिंग वोट का बिग नंबर आया निकल के।
शहरों में कौन रहता है राजीव जी, आप बताइए। शहरों में तो वो लोग रहते हैं जो गांवों से पढ़ लिख के आए हैं शहर में नौकरी करने के लिए। डबल वोट, डबल वोट। उत्तर प्रदेश में हमने 1 हफ्ते का समय मांगा था SIR बढ़ाने का, बीजेपी बढ़ाने पे बढ़ाने तुली हुई है, फिर 14 दिन का बढ़ाया, फिर अब बढ़ाने की बात हो रही है। क्यों? शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का डबल वोट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। आप सोचो, मैं आपको 2 विधानसभा का आंकड़ा देता हूं लखनऊ की, जिसमें लगभग 1,97,000, 1,98,000 वोट कटा है। आप जानते हैं बीजेपी यहां कितने से जीती है? एक पे लगभग 60,000 से जीती थी और एक पे लगभग 35,000 से जीती थी 2022 में। अगर हम उसी आंकड़े को ले लें तो बीजेपी का वोट तो खत्म हो गया लखनऊ के अंदर। और सिर्फ लखनऊ नहीं, जितने महानगर हैं, जितने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन सब जगह पे बीजेपी के डबल वोट थे। यानी कि भारत में अगर सबसे बड़ा कोई चोर था वोटों का तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग थे कि उन्होंने डबल और ट्रिपल वोट बना रखे थे। आपको याद होगा राहुल जी ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि वो लखनऊ में भी वोट डाल रहा है, वो दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, वो कर्नाटक में भी वोट डाल रहा है, वो नोएडा में भी वोट डाल रहा है। एक आदमी 4-4 जगह वोट डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर कल्पना करो, आप कल्पना करो। एक चीज है यहाँ पे जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्चुअली डॉक्टर ढोने को एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन मैं ही कर देता हूं। छोटी सी बात है, जो उन्होंने ब्राजीलियन मॉडल की बात करी थी ना, भारतीय जनता पार्टी और सामने के जितने भी लोग थे वो ये कह रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि ये मॉडल यहां पर आई और 22 जगह पे वोट करके गई। ऐसा बिल्कुल राहुल गांधी ने नहीं कहा था। राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि गूगल इमेजेस में जो फ्री में इमेजेस डाउनलोड होती हैं, एक इमेज डाउनलोड करके इस शख्स के नाम पे 22 वोटर्स आईडी कार्ड इशू कर दिए गए थे। उसका यहां आने का कुछ नहीं था। यह था कि ये मॉडल जो हैं, ये ब्राजीलियन सिटीजन हैं, इनकी शक्ल हमारे हिंदुस्तानी वोटर्स आईडी कार्ड पे कैसे आ गई। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो यहां पर आई। तो मेरा ये कहना है कि सर जो बीजेपी की जो मीडिया शैली जो है, उनकी जो मीडिया संस्थापना है, वो बहुत पावरफुल है। इंफॉर्मेशन आईटी सेल जो है बीजेपी का बहुत जबरदस्त है सर। तो मुझे लगता है सर झूठा सर, पूरी बात सर, झूठा हो सच्चा हो वो अलग बात है। मनोज यादव जी, आपको लगता नहीं कि उनसे कुछ सीखना चाहिए? झूठे लोग हैं ये झूठ फैलाना जानते हैं, ऐसा बोलिए। मनोज यादव जी, आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, अरे उनको बोलने दो थोड़ा सर। मनोज यादव जी, आपको लगता नहीं है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत बिल्कुल दे आर ऑलवेज बैटल रेडी, हमेशा युद्ध के लिए तैयार, वैसा कुछ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, एनसीपी को, बाकी सब लोगों को भी करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, बीजेपी चाहे युद्ध के लिए तैयार रहती हो, चाहे घोड़े पर सज के खड़ी हो, समाजवादी पार्टी ऑन द मार्क है। 24 में उठा के पटका है और बुरी तरीके से पटका है हमने। 24 में सारी हेकड़ी निकल गई। आएंगे आपकी 400 पार वाला नारा लेके और 200 पे भी अटक गए थे। ये तो को गनीमत मनाओ कि चुनाव आयोग भाई साहब जो उनके थे, उन्होंने 30-40 सीटें बढ़ा दी, फिर सत्ता की जगह विपक्ष में बैठे होते, वो माफ करिएगा जेल में बैठे होते अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी। और आरएसएस प्रमुख भी अपने संगठन की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार कर रहे होते कि मेरे संगठन को बचाओ माय लॉर्ड, मेरे संगठन को बचाओ माय लॉर्ड। ये तो विपक्ष वाले उस पर मुकदमे पे मुकदमा किए जा रहे हैं, हमारी जांच करा रहे हैं। लेकिन मैं इन सारी बातों से इतर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी या स्टैलिन जी की पार्टी या ममता जी की पार्टी देश में बीजेपी के सामने डट के मुकाबला कर रही है, तो कांग्रेस और अन्य तमाम सारे हमारे जो इंडिया गठबंधन के लाई हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है निडर होकर, बिना डरे, समाजवादियों की तरह, ममता जी की टीएमसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह और सब की तरह डट के लड़ना सीखो। बीजेपी राहुल गांधी कांग्रेस बीजेपी सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जी बोलिए सर, बोलिए। राहुल गांधी का भी नाम लीजिए। राहुल गांधी जी से कोई बहस नहीं है। राहुल जी लड़ रहे हैं, जो आरएसएस रूपी कांग्रेस वो नहीं लड़ती है। मैं राहुल पे कोई सवाल नहीं है।
वो दिन हमें पुराने मालूम हो है गए ना हैं, कि अभी आरएसएस नहीं है रूपी वो। कांग्रेस कैसे नहीं, अभी बीजेपी नहीं, को अभी जिंदा नहीं। कर रखा है। नहीं अभी मैं नहीं। आपको दावे से अभी बता नहीं, रहा ये हूं। पुराने दिन। नहीं दोनों साहब मैं सही आपको कर रहे हैं। बताता हूं, मैं आज आपको एक बड़ी बात बताता हूं। एक मनोज लाइन यादव में जी कह के सुनिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। अगर इसी इंडिया गठबंधन में आरएसएस रूपी कांग्रेस के वो लीडर्स नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया जाता तो आज नरेंद्र मोदी जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन उन लोगों ने, मुझे तो एक बात याद है, मैं एक मीडिया हाउस में बैठा था नोएडा में, जब उस व्यक्ति से मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर एलाई नीतीश जी को उसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे इंडिया गठबंधन का, सभी लोगों की इच्छा थी चूंकि इंडिया गठबंधन नीतीश जी ने बनाया था, लेकिन आरएसएस रूपी कांग्रेसियों ने उनको भ्रमित किया और वो जब नहीं बने और टूट के वो चले गए तो आज किसकी सरकार बन गई? किसकी सरकार बन गई? आप सबको मालूम। इसलिए ये बात राहुल जी के लिए, प्रियंका जी के लिए, खड़गे जी के लिए नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से बता दो कि कांग्रेस में उन लोगों को जो आरएसएस के लिए बैटिंग करते हैं उनसे राहुल गांधी जी को सतर्क होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए हम तो लड़ लेंगे, हम तो थर्ड बना के लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हराना इनका। जब जनता देखेगी विकल्प के रूप में बीजेपी से लड़ने वाले अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग हैं, एनसीपी है, एनसीपी मतलब शरद पवार जी की एनसीपी, सुप्रिया सुले जी की एनसीपी और समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, स्टालिन जी की पार्टी है और भी है, केजरीवाल जी है। बट दोनों साहब ना अगर दोनों साहब, बट डोंट यू थिंक पीछे देखेंगे तो आपको लग रहा है नीतीश कुमार को साथ नहीं लेना एक राइट डिसीजन था? बिकॉज आज जिस प्रकार से बुरखा खींच के एक पूरा देश और विदेश में हंगामा कर दिया, एक महिला डॉक्टर का बुरखा, वो नीतीश जी की व्यक्तिगत अपनी वो चीजें हो सकती ऐसे कैसे सीएम हम आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन में जब उनको चेयरमैन बनाने की बात थी तब की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मगर यही हालत होता है में जो दोषी है उसके खिलाफ नहीं सर, वो कार्रवाई होनी जो चाहिए, किया वो उन्होंने, उनको राइट नहीं मिलता है, भाजपा के वो उनको संगठन राइट में नहीं रह के है। वो उन पे लग गया वो। बोलिए धोनी साहब बोलिए। वो जो नीतीश कुमार जी है, नीतीश कुमार जी उनके साथ में बहुत दिनों से है, हाँ तो साथ में रहने से कुछ दुर्गुण आ जाते हैं, वैसे उनमें वो दुर्गुण आ गया बस। मनोज यादव जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मनोज यादव जी दोने साहब आप करेंगे कैसे? दोने साहब आपका तकलीफ यह है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो गया, आपसे बिछड़ गया। अब सुप्रिया जी कुछ ऐसे इशारे दे रही है कि सुप्रिया जी और अजित पवार सब फैमिली एक साथ आने वाले हैं, तो वो भी शरद पवार जी भी आपसे हट गए। दोनों साहब आप अकेले रहे, आप अकेले हो गए भैया। आप शरद अकेले पवार हो गए। साहब जो है वो शरद पवार साहब बीजेपी के बहुत खिलाफ में है, पहले से ही खिलाफ में है। मैं ये बात कभी मानता नहीं हूँ कि शरद पवार साहब बीजेपी के साथ कभी जा सकते, बात मैं मानता नहीं। मैंने कई लोगों को बोला कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अहमद पटेल बीजेपी के साथ जा सकते हैं, शरद पवार साहब बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। लेकिन अभी जो मनोज ये यादव बात जी ने कई कहा, बार बोले और वो अभी ठीक है, जो बात तो मनोज यादव जी ने कहा, प्रदीप जी एक सेकंड, नहीं यही बहुत शरद समय से पवार बोलते आया जी, हूं। मगर सुप्रिया सुले जी ने क्लियर इंडिकेशन दिया है कि वी आर गोइंग अहेड विद अजित पवार और रेसिग्नेशन, जो आपने जगताप जी रेसिग्नेशन भी दिया उस डिस्गस्ट में कि हम नहीं सेक्युलर। देखिए, अभी सुप्रिया ताई के दिल में क्या चल रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन हम पवार साहब को जानते हैं जी। और मुझे लगता है कि पवार साहब अभी 84 इयर्स के हो गए, तो उनके जीते जी मुझे नहीं लगता है सुप्रिया ताई ऐसा निर्णय लेंगे। लेकिन क्योंकि अपने पिताजी की विचारधारा डॉक्टर उनको ढोने सर, मालूम है कि सर, पिताजी की विचारधारा क्या है, वो नहीं डॉक्टर करेंगे ऐसा ढोने, मुझे लगता है। अभी हम अभी बात करेंगे सुप्रिया ताई से जी, कि जी। आप ऐसा कुछ कदम मत उठाइए जिससे शरद पवार साहब को बहुत तकलीफ होगी। हमें तो लगता है शरद पवार साहब खुद ही कर रहे हैं, लेकिन आई वांट टू आस्क यू समथिंग। प्रॉब्लम इज मनोज यादव जी इज नॉट हियर। आई शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर। जैसी मनोज यादव जी ने ये बात कही, आपने शायद सुनी नहीं, जरा ध्यान से सुन लीजिए सर। उन्होंने कहा कि डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बाकी जितनी भी एंटी बीजेपी पार्टीज हैं, जिस प्रकार वो लड़ रही हैं, कांग्रेस को भी वैसे ही लड़ना पड़ेगा। मैंने बोला सर, उसका जवाब दिया, राहुल पूरी गांधी बात का नाम तो सुन लीजिए, लीजिए। राहुल गांधी का नाम हाँ, बोला पूरी मैंने। बात तो सुन लीजिए ना सर। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस एलिमेंट है, अगर कांग्रेस को ऐसा नहीं करने देगी, तो वी विल फॉर्म ए थर्ड फ्रंट माइनस द कांग्रेस। बिना कांग्रेस के हम लोग थर्ड फ्रंट बनाएंगे। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके ऊपर है सर, पूछ रहा हूं आपसे। नहीं 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 नहीं, ऐसा देखिए, बिना कांग्रेस के थर्ड फ्रंट को कोई वैल्यू नहीं है।
ये कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, 2 नंबर की पार्टी है देश में, तो बगैर कांग्रेस को बाजू में रख के कोई डिसीजन लेते हैं, इसका मतलब आपके दिल में खोट है कि बीजेपी को हराने के लिए आपके दिल में कोई यानी जज्बा नहीं है, यही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो आपके मुताबिक ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, now how do you see this? सैम पिट्रोडा कह रहा है कि इट इज राहुल गांधी जी का हक बनता है, ही इज रेस्पेक्टेड ऑपोजिशन लीडर, वो अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, वो दिल की बात कर रहा है, वो ही इज टॉकिंग द राइट थिंग, सच्चाई बयान कर रहे हैं। मगर बीजेपी का क्रिटिसिज्म कि देश के बाहर जाके देश का अपमान करना, डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में, राइट विंग एक्टिविज्म अब हो गया, लेफ्ट माइनॉरिटीज आर लिविंग अंडर, हाउ डू यू सी दैट? इज इट राहुल गांधी's right to criticize outside the country? Rahul Gandhi is saying what is happening over here, and this is a fact that everybody knows that यार संविधान डेफिनेटली खतरे में ही है। आप देख रहे हो जैसे अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि मतलब उनको जो अपना मतलब रिलीजियस फेस्टिवल है वो भी मनाया नहीं दिया, तो डेफिनेटली संविधान खतरे में है। संविधान ने कभी ऐसे नहीं बोला कि माइनॉरिटीज कैन नॉट सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स और एनीथिंग। तो ये सब बातें जो बाहर के लोग भी देखते हैं, बाहर के लोग भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि इज इट ट्रू दैट द कैथलिक्स आर क्वाइट स्कैर्ड? They talk in a very hushed voice. People have asked this question to us. You know, they may not ask openly, but this is what they have been asking. And दिख रहा है ऐसे क्यों? Everybody has the right. This is not the first time it has happened. It's happened before also. You remember the Staines murder along with his 2 kids? He was burnt alive in Odisha, if you remember. Yes. And then after that guy who did it, that Dara Singh or whatever his name was, he was let off, and he actually stood for election and stuff like that. So all I'm saying is this element has been there. But right now, the manner in which they are working has never been seen before. Like for example, I've never seen in Mumbai. I've been in Mumbai now since 1993. 1993 से मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में मैंने आज तक कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है। And to tell you the truth, people over here, even the shopkeepers and all, or the hotels and all, they are also a little bit like, you know, they are scared कि what will happen? Will somebody come and sort of, put this thing on them? So this is what is happening. So this is not a free India, which everybody. But I find this very strange. How can these guys do this with such impunity? Go in front of a church, get hold of all the kids and start reciting the Hanuman Chalisa there. किसने आपको मना किया है? आप मंदिर के सामने हनुमान चालीसा गाइए, रोड के ऊपर गाइए, जहां मर्जी गाइए, हम भी गाते हैं रोज घर में। और जहाँ पे आप राम भक्त सबको आपको अब राम भक्त बोलते हो और फिर जाके तपोवन को आपको नासिक में उस तपोवन उजाड़ देते हो, ये कौन सी आपकी। और दूसरी चीज है डॉक्टर मल्होत्रा, इसके पहले कि ये सवाल रह जाए, मैं भूल जाऊं, आप अगर इतने ही राम भक्त हैं, इतने ही अपने आप को बजरंग दल वाले समझते हैं और हिंदुत्व के इतने ही अनुयायी हैं, तो बांग्लादेश में जाओ ना यार। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? I would like to know. वहाँ पे तो कुछ करते नहीं है। वहाँ पे तो जो डिप्लोमेसी करनी चाहिए, वहाँ पे जो बात रखनी चाहिए वो तो नहीं कर नहीं रहे। हर रोज कोई ना कोई खबर आती है कि आज एक हिंदू युवक को मार दिया, उसके बाद एक और को मार दिया, एक को जिंदा जला दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? I would love to know. What is the VHP doing? What is the Bajrang Dal doing? Why don't they go across over there? उनको वहाँ कुछ लेना देना नहीं है, उनको यहाँ पे सीट चाहिए, उनको यहाँ पे वोट्स चाहिए। सो ऑल दिस डिवाइड एंड रूल वाली टैक्टिक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। They want to rule absolutely। मनुस्मृति को वापस लाना है। एंड अभी देखा हमने ये इसके ऊपर डिस्कशन में ही देखा कि किसी ने कुछ बोला भी, जैसे आरएसएस के अगेंस्ट बात ही अगेंस्ट, मतलब इट वाज अ नॉर्मल क्वेश्चन, तो कैसे भड़क उठे और बात करने लगे। दिस इज व्हाट इज बीजेपी मेंटालिटी। दे ऑलवेज डू दैट। कोई सीधी बात बोलने लगेगा तो उसके ऊपर से चिल्लम चिल्ली करके किसी को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सवाल पूछना चाहिए आपको। मुझे ये समझता है डॉक्टर मल्होत्रा और डॉक्टर ढोने, आप दोनों डॉक्टर हैं, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई साहब, आप यहाँ पर आकर के जो गरीब लोग हैं, गरीब ईसाई बेचारे जो हैं, पीसफुल लोग जो हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ईसाई रहते हैं। मैंने आज तक कभी कोई क्रिश्चियन मिलिटेंसी मैंने कभी नहीं देखी हिंदुस्तान में। आप लोग जो हैं इनके ऊपर जाकर के अपना रोज हमारे जैसे ये शख्स जो हैं इतना लाल टीका लगा करके जो पीट पाट रहे हैं ईसाइयों को, अरे भैया बांग्लादेश में जाओ ना, वहां पे रक्षा करो हिंदुओं की, क्यों नहीं करते हो? डॉक्टर धोने, एक गवर्नमेंट पॉलिसी, यहाँ हमने देखा कि मिडनाइट मास 24 को मिडनाइट होता है, मगर सरकार ने ऑर्डर निकाला कि 10:30 के बाद आप ज्यादा स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते,
और वहां पर रोक लगाया जो गैदरिंग था क्रिश्चियन समाज के कि 10:30 के बाद स्पीकर्स कम यूटिलाइज करो। एट द सेम टाइम वही दिन में आप लिकर शॉप ओपन है 1 बजे तक, यानी दारू के दुकान 1 बजे तक ओपन है, मगर Bars till 5:30. ये मास जो है 10:30 लास्ट एंड पुलिस विल कम एंड चेक द स्पीकर्स 2 स्पीकर पे अलाउड। तो किस प्रकार द गवर्नमेंट पॉलिसी दोरे साहब आप बात करना चाहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी पर? नहीं सर, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मैंने इसके पहले भी बोला है कि महाराष्ट्र को, ये जो दारू की बात कही आपने, तो महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मध्य राष्ट्र, मराठी में मध्य बोलते हैं दारू को, तो हमने बोला था कि महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाना चाहती है। और ये जो है इनका एक ही रहता है कि ये करने वाली सरकार भी जो है ना, ये चाहती है कि कुछ ऐसा माहौल बने कि हम मुसलमानों के खिलाफ में हैं, हम क्रिश्चियनों के खिलाफ में हैं। तो जो कट्टरपंथी हिंदू है, जो पागल हिंदू है, कट्टरपंथी यानी जैसे मुसलमानों में कट्टरपंथी है, वो भी पागल ही लोग है, वैसे हिंदुओं में भी अभी बढ़ रहे हैं इस तादाद। तो ऐसे लोगों को खुश करने की सरकार कर रही है कोशिश, और सरकार चाहती है कि जो अभी माहौल खराब हो रहा, जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा लोगों का यहाँ पे ध्यान हटे। एक छोटी चीज आपको बता दूं, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट has announced a significant decision for the hospitality sector, granting bars and hotels and restaurants the ability to operate until 5 a.m. on December 31st. That is from 1st of January, bars will be open till 5 a.m. in the morning. सर ये हिंदू संस्कृति में चलता है कि दारू पीना? एग्जैक्टली चलता है? चलता है हाँ, चलता है, हिंदू चलता है। संस्कृति में चलता है श्रीमद् दारू पीना। भागवतम में बलराम पिया करते सर, बलराम जी पिया करते सोमरस तो कोई टेंशन नहीं। सोमरस तो बहुत सर हिंदू संस्कृति की बात मत करो, ये कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अंग्रेजी है, साल है, क्यों मनाते हैं? नहीं, अपना साल नहीं है ये, मैं मान करके चलता हूँ, ये अपना साल नहीं है। December 31st is the Gregorian New Year after Pope Gregorius or Pope Gregory as he is called in ये English. धंधा करने वाले लोग हैं, दारू किस दिन ज्यादा बिके यही कोशिश है। सर, लोग एक्साइज घर आती है में ना, सर। दारू पिए, लोगों के घर बार उद्ध्वस्त हो जाए, इनको कुछ लेना देना नहीं, हमारी जेब में पैसा आना चाहिए, बस यही है। But Dr. Dhone and Dr. Malhotra, drugs were also caught. ma'am, it is liquor excise from liquor, which is the highest earner for the government. सीधी बात है। तो आप क्या करेंगे? और तो कहीं से पैसा आ नहीं रहा मैम, यहाँ से तो आ रहा है ना। In any event, very bad actually, very. In any event, thank you the both of you for coming over here. But very sad day indeed. I am very sad personally. Thank you. मतलब मैं बहुत उदास हूँ कि क्रिसमस वाले दिन ऐसा कुछ हुआ. It's absolutely terrible. I've never seen it before, and I feel terrible. Yeah. Rightfully speaking, all parties, all of you should have been on the street in support of Christians. यही सुन के डॉक्टर ढोने पहले ही चले गए थे. चलिए, डॉक्टर मल्होत्रा, thank you very much. Always a pleasure having you on the show, man. Thank you very much. Namaskar. But Pradeep ji, terrible, no, isn't it? I mean, absolutely What you awful. pointed out was fantastic. Is right. It shouldn't be happening. These things doesn't. If you call BJP is challenging this word secular also. They want a debate on secular where the constitution is concerned. So, सर जहाँ तक सेक्युलर का सवाल है, सेक्युलर के ऊपर डिबेट हो सकती है. Socialism and सर secular. in the strict dictionarial term, secular stands for absence of religion. सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता respect for all religion. Indian secularism is different from secularism per se. सेक्युलर का मतलब होता है धर्म का अभाव, जहां पर धर्म का कोई रोल नहीं है. अब वो हिंदुस्तान में तो हो नहीं सकता. चलिए उसके ऊपर आप जो मर्जी डिबेट कर लीजिए. और जहां तक के सोशलिज्म का सवाल है, समाजवाद का सवाल है, आप मेरी बात सुनिए. ये जो 83 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में मील्स दे रहे हैं हर रोज, वो सोशलिज्म नहीं है तो और क्या है? समाजवादी है ना सर. बट अगर संविधान प्रियम्बल में है तो है, उसको निकालने की जरूरत क्या है? सर वो बाद में लाएंगे ना. आप बात कर रहे हैं कि सेक्युलरिज्म को हटाओ, एट द सेम टाइम हिंदू राष्ट्र का घोषणा. एंड हु इज डूइंग इट? मोहन भागवत. सर एंड मोहन भागवत इज नॉट अ स्मॉल मैन. Secularism and socialism, these were two words which were brought in during the emergency. जब ये preamble को change किया गया. It is not there in the original preamble. So what are you? Point है कि आप कह रहे हैं कि इस पर डिबेट होना चाहिए. At the same time, RSS chief says हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, and RSS includes सभी देश में. So what? At the same time, you are asking for a debate. You are also propaganda जो आपका चल रहा है कि this is what is going to come.
this is the next in waiting. So the ideology of both BJP and RSS is very clear of Hindu Rashtra. दुरुस्त बात है, लेकिन यहाँ पर वही चीज है ना जो अभी अभी मनोज यादव साहब ने बताया, जिसके ऊपर भड़क गए थे जनाब अवधूत वाघ साहब। एक्चुअली वो आरएसएस पे नहीं भड़के थे, वो भड़के इस बात पर थे, अगर मैं एनालाइज करता हूँ, कि एक तरफ मोदी जी चर्च इसीलिए गए हैं कि भैया मैं तो यहाँ चर्च जा रहा हूँ, तुमने जो काम करना कर लो, ये मनोज यादव जी ने कहा था, इसके ऊपर भड़क गए थे। लेकिन बात तो सही है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर आपका उदाहरण अगर आप फॉलो करते हैं तो सीधी सादी बात है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। मतलब कि ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन जो है, सो कॉल्ड सैफरन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, मतलब हाउ कैन दे डू दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। Actually, this RSS has to, because all umbrella organizations, RSS. One word from the RSS that we are not going to disturb any of this would have stopped the matter. But there is no clear indication जी from the RSS. आप कह रहे हो कि you are inclusive. तो आपको बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि कि ये लोग जो सब कुछ ये बकवास जो कर रहे हैं वो गलत बात है। So RSS owns and disowns. जी प्रॉब्लम हुआ, डिसोन करो, नहीं अपना आइडियोलॉजी ओन कर लो। तो दे हैव बीन राइट फ्रॉम राइट, वी हैव सीन सिंस डिकेड्स दिस गोइंग ऑन। Sir, the word socialism, secularism and integrity, these were all added to the preamble in 1976, 1976 में, by the 42nd Constitutional Amendment. Now, what I am surprised about is that if the BJP was so agitated about it, last time they won 303 seats. They could have easily got the rest of the numbers, they could have changed it, they could have taken it back to the original preamble, जो अडॉप्ट किया गया था 1950 में, उस पे ले जाते। सीधी बात है ना। आपको ऑब्जेक्शन है कि 1976 की 42nd अमेंडमेंट के तहत द वर्ड सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म वर एडेड। इंटेग्रिटी से तो खैर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को, दोनों शब्दों को अगर आपको निकालना है तो आप उस वक्त निकलवा सकते थे, क्यों नहीं निकलवाया आपने? आई थिंक प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, प्रायोरिटी लिस्ट में राम मंदिर था, आर्टिकल 370 था, and article 35 है। Yes, that's it. So they had everything prioritized and this is probably coming. और इस बार क्या हुआ, नंबर्स नहीं है इस बार, देयर आर नॉट इनफ नंबर्स, क्योंकि बीजेपी के पास खुद के पास सिर्फ 240 हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन मिस्टर नीतीश कुमार एंड मिस्टर व्हाट्स हिज नेम चंद्रबाबू नायडू एंड ऑफ कोर्स द अदर्स लाइक चिराग पासवान एंड ऑल द एक नाथ शिंदे जी, ये सब लोग जो हैं इनके ऊपर अभी डिपेंडेंट है। लेकिन मेरा ये कहना है कि it doesn't really make a difference whether you call it a socialist state or you call it a secularist state। मतलब शब्दों से, शब्दावली से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जमीन पर उसका प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। मोदी जी सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में गए, पूरी सर्विस उन्होंने अटेंड करी सर। He always took the Eucharist, he also took the entire service and so on and so forth। और वहां पर ये लोग जो हैं वो क्रिसमस के खिलाफ मतलब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मतलब आपको मोदी जी के लिए भी आदर नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। आई डोंट बिलीव पर्सनली बाय द वे दैट मिस्टर मोदी वुड हैव अप्रूव्ड ऑफ समथिंग लाइक दिस। ही वुड नेवर डू इट। नेवर मतलब नेवर। आई नो मिस्टर मोदी, he would never ever do it। You know the former minister from Kerala, Alfonso, he said Alphonse, he's KJ Alphonse. yes, he's I'm from the Syrian Catholic Samaj, and within the church there's attempts to destabilize the existing archbishop. Yes, So within the community there is fight, there is strife, there is action, there is Always. all, and how, so they're beating up each other, there's violence. So do you blame everything on Prime Minister Modi? you can't। That's- but in terms of what the VHP is doing and whatever the Bajrang Dal guys who came in and did it was, like for example, चलिए झारखंड छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है ना सर। अंदर डालिए पकड़ के इनको। इनफैक्ट देयर इज अ वीडियो ऑफ दिस बीजेपी लीडर, सम लेडी कॉल्ड अंजू भार्गव और समथिंग, दैट इज द नेम, और भारद्वाज या भार्गव, एक्चुअली इट मींस द सेम थिंग। गोत्र एक ही होता है, परशुराम जी का गोत्र है वैसे बाय द वे, ये भी आपको बता दूं, भार्गव। वो जाकर के देयर वर दीज डिफरेंटली एबल्ड गर्ल्स फ्रॉम दिस क्रिश्चियन स्कूल, वो जो कैरल्स गा रही थी उनको जाकर के थप्पड़ मार रही है। Why is she not in jail? That's what I want to know. I mean, this is terrible. Why has Mr. Yadav, again Manoj Yadav, not the Manoj Yadav who is with us, I'm talking about the Chief Minister of Uttar Pradesh, why has he not put her in jail? Sir, slapping a differently abled girl? मतलब, I find this
हीनस एंड आई फाइंड दिस एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। इससे ज्यादा और डिस्गस्टिंग बात कोई हो नहीं सकती, वेरी फ्रैंकली। और जैसा कि मनोज यादव साहब ने कहा, हमारे साथ जो थे चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द समाजवादी पार्टी, कि अगले दिन जब न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, जर्मनी में, फ्रांस में जब आप दिवाली मनाएंगे तो लोग आकर के आपकी दिवाली को इसी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिंदुओं के खिलाफ मूवमेंट चल रही है, मतलब व्हाट इज दिस? नॉट डन। No, every crime has to be acted upon as per the constitution, as per the given laws. Sir, even in Dubai you are allowed to celebrate Diwali. Even in UAE you are allowed to celebrate Diwali. और तो और छोड़िए, सऊदी अरेबिया has introduced भगवत गीता studies. बाकी सब चीज छोड़ दीजिए सर। पाकिस्तान has reintroduced Sanskrit in the Punjab University लखनऊ, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। लाहौर में संस्कृत के डिपार्टमेंट को रेजरेक्ट कर दिया गया है और भगवत गीता स्टडीज हैव स्टार्टेड इन पाकिस्तान। मैं तो ये बोल रहा हूं आपको। और हम लोग क्या कर रहे हैं सर? दिस इज नॉट डन। जस्ट अ कपल ऑफ बैड एग्स, रॉटन एग्स कैन डिस्ट्रॉय ऑल द एफर्ट्स मेड बाय मिस्टर मोदी एंड बाय एवरीबॉडी एल्स एंड बाय डॉक्टर एस जयशंकर। अब उसका क्या जवाब देंगे जब डॉक्टर एस जयशंकर जब वापस यूएसए में जाएंगे? देयर विल बी समबडी और द अदर हु विल बी प्रॉप्ड अप बाय पाकिस्तान और somebody or the other. Of course. क्या जवाब देंगे डॉक्टर जयशंकर? उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास, unless you take strict action against these people and shove them into jail. And exhibit that. And exhibit the action that you've taken. Yes, everybody should know कि ये हुआ है, अंदर डालिए इनको, सीधी बात है। नहीं तो आप में और बांग्लादेश में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है आपने अभी तक किसी को जलाया नहीं है, जो पहले आप जला चुके हैं। वैसे ग्रैम स्टेन्स वाले केस के अंदर आप जला चुके हैं उसको और उसके दोनों बच्चों को। And look at Mrs. Stein, she came over here and she forgave you. In any event, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे नेशन नाउ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। When you click on the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel in the nation. From both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। और इसके पहले कि हम जाएं, एक बार फिर जो मुझसे गलती हुई मैं मानता हूं। आज शहीदी दिवस के दिन आप सब लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज और 4 साहिबजादों की तरफ से एक बहादुरी का पता जो है वो मिले। आप भी वैसे ही बहादुर बने, हम सब लोग वैसे ही बहादुर बने। सब लोगों को वही वीरता का जो एक लेसन है जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है। जैसा आज अमित शाह साहब ने कहा कि आज अगर हम लोग जिंदा हैं सिर्फ और सिर्फ गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी की वजह से हम लोग जिंदा हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है। And the government has taken, you should appreciate that. Yes. They declared this at least to signify event in history. सर, एक सिख स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे राम का दिवस कोई वो नहीं है, कृष्ण जी का कोई दिवस नहीं है, वगैरह वगैरह, जितने भी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनका नहीं, लेकिन वीरता दिवस है। 4 साहिबजादों की कुर्बानी पर वीरता दिवस है। तो आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग उस देश के वासी हैं जहां पर इन 4 साहिबजादों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया लेकिन अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। That's it, that's all we've got for you। आप सब लोगों को नमस्कार। भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.